Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 17th of January to 23rd of January. So let's start. These are the topics for today. Our first topic is related to computer emergency response team. Second article is related to kill switch mechanism. Third article is related to digital arrest. Fourth article is related to RBI's push for digital currencies. Fifth article is related to Chinese FDI in India and the impacts. The next article is related to FDI coming into India and going out of India. The next article is related to BRO and its projects. Then we have another article with respect to Startup India, and the last article for today would be Digital Dairy. So basically it focuses on use of technology in the dairy sector. Fine, so let's begin with our today's discussion. So recently there has been data put forth in public domain which highlights the rising cases of financial frauds in this country. So since the article says that इंटरनेट यूज़र्स हमारे यहाँ जो है इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब कर रहे हैं. सो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 100 करोड़ लोग वो के आसपास लोग इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं. ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं. ठीक है ना. तो मालूम ये चला कि सिंस एवरीवन इज कमिंग ऑन द इंटरनेट ऑन द सोशल मीडिया, दे आर यूजिंग ऑनलाइन मैकेनिज्म्स टू ट्रांसफर फंड्स, and as a result of which online hackers and financial fraudsters have gained a lot of base to undertake their illegal activities such as financial frauds and all. ठीक है, तो उसी सीरीज़ में डेटा आया है कि 29 लाख साइबर इंसिडेंट्स देखे गए हैं जो कि हैंडल किए गए हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से. सो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से रिलेटेड आर्टिकल है ये. ठीक है, तो इंडिया में जो फर्स्ट एजेंसी है जो रिस्पॉन्ड करती है किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ठीक है, एंड इसने काफ़ी सारे जो है प्रोएक्टिव अलर्ट्स दिए हैं to prevent any of the mishappening with respect to cyber security in this country. So the first responder for cyber security issues in this country is Computer Emergency Response Team. So the article highlights that since as far more and more people are coming on the internet, more and more people are using online mechanisms for fund transfer, this organization becomes more and more important. So let's have some basic idea about this organization. So Computer Emergency Response Team, CERT-IN means India. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है. तो ध्यान रहे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है. ऑलराइट, तो इसका लीगल बेसिस क्या है? इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट. तो ये एक जो है किस एक्ट से इसको पावर मिल रहा है? सेक्शन 70B ऑफ आईटी एक्ट. एंड इसी से रिलेटेड एक और बॉडी है जिसका नाम है I4C, विच मीन्स इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. ठीक है, ये भी साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में. ठीक है, but this organization is under Ministry of Home Affairs. So there is a catch, and please be mindful of it, that Computer Emergency Response Team is under Ministry of Electronics and Information Technology, looking after the cyber security infrastructure in this country. And the next organization is India Cyber Crime Coordination Center, which looks after which also looks after the cyber security infrastructure, but it comes under Ministry of Home Affairs. So that was the news in the first article. Let's move on to our second article. The second article is related to digital arrest. तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन देखा होगा
कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे समवन जो एकदम पुलिस वाले के कपड़े पहन के आपको वीडियो कॉल करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा एंड आपको कोर्स करेगा, डराएगा कि आपको जो है किसी भी इलीगल एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व पाया गया है एंड आपसे एक अमाउंट डिमांड करेगा, ठीक है। एंड बहुत डिजिटल अरेस्ट करने की बात करता है, बहुत सारे ऐसे आजकल केसेस सुनने में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि बेसिकली ऐसे डिजिटल अरेस्ट के केसेस और ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे इंडिया में। तो उसी सीरीज़ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाई थी टू लुक आफ्टर दिस द इशू ऑफ डिजिटल अरेस्ट एंड the scams going on along with that, and as a result of which the committee has come up with some recommendations। तो उसी recommendations पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो कैसे होता है ये डिजिटल अरेस्ट का स्कैम? वीडियो कॉल पे जो है डराया जाता है, वीडियो कॉल पे डराया जाएगा, वीडियो कॉल करके इम्पर्सोनिफिकेशन ऑफ पुलिस के सामने एक पुलिस वाला या पुलिस वाले के कपड़े पहन के एक एक स्कैमर बैठा होगा एंड आपको डराएगा कि आपसे ये गलती हो गई है एंड आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। कोअर्शन करेगा, साइकोलॉजिकल कोअर्शन, थ्रेट देगा, आपकी बदनामी करने के लिए डराएगा और फिर आपसे एक अमाउंट डिमांड करेगा, ट्रांसफ़र फंड्स फॉर वेरिफिकेशन। या फिर वो ये भी कर सकता है कि आप अपना पैसा, आपका पैसा पाया गया है कि इलीगल सोर्सेज से है, आप अपना पैसा जो है किसी दूसरे अकाउंट में मंगवाएं, ठीक है। तो आपसे जो है आपको डरा कर आपका पैसा वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि वेदर आपका पैसा सही ढंग से कमाया हुआ है या इलीगल ढंग से कमाया हुआ है, किसी दूसरे अकाउंट में आपसे ट्रांसफ़र कराएगा एंड जो सामने जो इंसान बैठा होता है उसे लगता है कि वो डिजिटल अरेस्ट हो गया है एंड एज अ रिजल्ट वो अपना पैसा ट्रांसफ़र करता है एंड अकॉर्डिंगली जो पैसा जो ट्रांसफ़र होता है दूसरे अकाउंट में, वो पैसा चोरी हो जाता है, किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ये लोग गायब हो जाते हैं एंड द पर्सन इज़ स्कैम्ड, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंड्स फॉर वेरिफिकेशन एंड जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है लेयरिंग वाया म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? देखिए क्या होता है कि म्यूल अकाउंट्स वो किराए के अकाउंट्स आप समझ लीजिए। अब जैसे कि क्या होता है, जो भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ के ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं या ट्रांसफ़र करे जाते हैं, तो इसमें होता ये है कि दे नीड, जैसे कि इफ़ आई एम द पर्सन हु हैज़ स्कैम्ड समवन एंड मैंने किसी को डिजिटल अरेस्ट करवा कर उससे एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस अमाउंट को जो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ढेर सारे अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करूँगा। ऑलराइट, छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करूँगा और ये जितने भी अकाउंट्स होंगे ये म्यूल अकाउंट्स होंगे, ठीक है। अब म्यूल अकाउंट्स का मतलब क्या है? ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो मैंने किसी दूसरे इंसान से किराए पे लिए हैं। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज स्टूडेंट से मैंने उससे कहा कि मैं उसको उसके अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस करूँगा 50,000 या 1 लाख तक के, एंड और पर ट्रांजैक्शन में उसको एक 2% 3% का कट दूंगा। तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स राज़ी हो जाएंगे, अलाउ करा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अकाउंट्स होते हैं म्यूल अकाउंट्स, जो कि रेंटेड अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो मैंने अगर जो है स्कैम करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके एक किसी अकाउंट में पैसा पहुंचवा दिया है, अब क्या मेरा प्रॉब्लम होगा कि कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज ट्रैक ना कर लें इस अकाउंट को। तो मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट से जो पैसा होगा उसको अलग अलग अकाउंट्स में छोटे छोटे फॉर्मेट्स में तोड़कर घुमाऊंगा या फिर ट्रांसफ़र करवाऊंगा बार बार, जिससे कि ट्रेसिएबिलिटी ऑफ द फंड्स ख़त्म हो जाए, ट्रेस ना किया जा सके। ऑलराइट, तो ये होता है म्यूल अकाउंट, ठीक है। सो उसी सीरीज़ में है। तो जो कमिटी है, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनी है, उसने इसी स्टेज पे कहा है एक किल स्विच मैकेनिज्म लेके आते हैं, किल स्विच, कि अगर कोई इंसान को ऐसा वीडियो कॉल आ रहा है जिसमें वो उसको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी जो फ्रॉडस्टर होंगे वो डिजिटल अरेस्ट करने की बात करेंगे और आपसे किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे, एंड ऐसा ज़रा सा भी सस्पिशन अगर किसी इंसान को हो रहा है, किसी सिटीज़न को हो रहा है, तो जो बैंकिंग ऐप होगा जिसके ज़रिए वो पैसे ट्रांसफ़र करने वाला होगा, तो उस ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए जाएंगे जिसको किल स्विच बोला जाएगा, और उसको प्रेस करने के बाद क्या होगा कि वो अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा एंड पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ए पर्सन को डिजिटल अरेस्ट किया गया है एंड उसको ऐसा लग रहा है, उस ए पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक इलीगल एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ, मुझे फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है, तो वो अपने उस बैंकिंग ऐप में जाकर किल स्विच को दबाएगा, तो उसका जो अकाउंट होगा वो फ्रीज हो जाएगा एंड वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्रपोज्ड किल स्विच विच विल फ्रीज द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु इज़ बीइंग स्कैम्ड। ऑलराइट, तो एक ये प्रपोज्ड किल स्विच की बात की गई है।
है ना। एंड इसी के साथ साथ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स की भी बात की गई है, इंश्योरेंस रिफॉर्म की। तो किल स्विच के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इट वुड बी एन इमरजेंसी बटन इन बैंकिंग एप्स टू इंस्टेंटली फ्रीज डेबिट ट्रांजैक्शंस। अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो फिर आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, लेयरिंग नहीं हो पाएगी, लेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इससे लेयरिंग नहीं हो पाएगी, मतलब जो पैसा जिस म्यूल अकाउंट में जाने वाला था वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ कमिटी ने ये भी रिकमेंड किया है कि एक फ्रॉड इंश्योरेंस पूल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, फ्रॉड इंश्योरेंस पूल बनाया जाए, ठीक है। तो जिससे कि जिनके साथ फ्रॉड होगा तो उनको जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स मिल सकेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेकेंड न्यूज। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड न्यूज, ठीक है। थर्ड न्यूज इज रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी सिस्टम। तो बेसिकली डिजिटल ब्रिक्स, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं विच मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये आपस में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में कर लें, डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में करें, डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में करें। मतलब कि इंडिया की डिजिटल करेंसी, चाइना की डिजिटल करेंसी ई चाइनीज़ युआन, इंडिया की डिजिटल करेंसी ई रुपी, रशियन रूबल, रशियन डिजिटल रूबल। तो ये सारी क्या है, ये डिजिटल करेंसीज है रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की। तो बेसिकली इसमें ऐसा प्रपोजल दिया जा रहा है कि ये कंट्रीज़ आपस में एक पेमेंट गेटवे बनाए जिसमें इंस्टेंटली इंडिया चाइना आपस में पेमेंट सेटलमेंट कर ले, रशिया इंडिया आपस में पेमेंट सेटलमेंट कर ले इन टर्म्स ऑफ डिजिटल करेंसीज। तो इनको डॉलर्स पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म है, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है एक। स्विफ्ट बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, ये एक मैसेजिंग ऐप है। क्या है ये एक मैसेजिंग ऐप है, मैसेजिंग सिस्टम है, बेसिकली मैसेजिंग नेटवर्क है, मैसेजिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो ए पर्सन इन इंडिया wants to transfer B person in USA, तो A पर्सन जाएगा बैंक A के पास जाएगा, ठीक है। और बैंक A होगा इंडिया में, और ये बैंक A मैसेज करेगा वाया स्विफ्ट बैंक B को, और ये बैंक B क्या है, USA में है। तो A बैंक A के पास जाएगा and he will tell that he has to pay B person a certain amount of money. So bank A will give a message to bank B that pays certain amount to B person in USA, and as a result the payment will be done by bank B to B person in USA, ठीक है। और ये पूरा ये जो मैसेजिंग का गेटवे है, ये जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं स्विफ्ट नेटवर्क, ऑलराइट। तो अभी ये जो स्विफ्ट नेटवर्क है ये डोमिनेटेड है यूएस के जरिए, यूएस द्वारा। सो इट इज कंप्लीटली टोटली डोमिनेटेड बाय यूएस, एंड इंडिया वांट्स टू in fact these BRICS countries want to have a alternate system which is not dependent on US or which is not dependent on dollar. So these BRICS countries want to do transactions in digital currencies of their respective countries, all right. So that is why they want to move away from dollars, and that is why this digital BRICS initiative is being talked about. So let's go deeper into the news. RBI pushes to link BRICS central bank digital currency. Example, e-rupee, that is for India, e-Chinese yuan, that is for China, and digital ruble, ठीक है। The objective is to bypass SWIFT, that is a US-led initiative, ठीक है, फॉर क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट। तो अभी अगर क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स करने होते हैं किसी भी कंट्री को, तो वो स्विफ्ट मैसेजिंग ऐप के जरिए जिस कंट्री में पेमेंट करना है उस कंट्री के बैंक को अप्रोच करते हैं वाया स्विफ्ट, ऑलराइट। एंड ये जो स्विफ्ट वाला जो नेटवर्क है, इट इज डिपेंडेंट ऑन यूएस एंड डोमिनेटेड बाय यूएस, एंड दैट इज व्हाई इंडिया वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस स्विफ्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन नेटवर्क। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन होगा, मोर एंड मोर ट्रांजैक्शंस आप डिजिटल रुपी में कर सकेंगे, ठीक है, विद है ना, इन प्लेस ऑफ डॉलर। एंड इससे डॉलर की डिमांड रिड्यूस होगी, एंड जब डॉलर की डिमांड रिड्यूस होगी तो इंडियन करेंसी जो बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, वो
रुकेगा, एंड धीरे धीरे फिर इंडियन करेंसी अप्रिशिएट करना शुरू करेगी, ठीक है। सो इंडिया बैलेंसेस रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगेंस्ट एंटी अमेरिकन ऑप्टिक्स। ऑलराइट, तो दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज़। we have some values with value box with respect to difference between UPI and e-rupee। e-rupee बेसिकली क्या है? e-rupee एक सोवरिन करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली प्राइवेट करेंसी होती है, बट जो e-rupee है वो डिजिटल करेंसी है विच इज़ बैक्ड बाय आरबीआई, सो इट इज़ सोवरिन इन नेचर, ठीक है। एंड यूपीआई क्या है? बेसिकली ये बैंक का मनी है जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल मनी है जो आप ऑनलाइन बैंक्स के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं, वो डिजिटल रुपी नहीं है। ऑलराइट, सो ये दिस इज डायरेक्ट लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज अल्टीमेटली लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई इटसेल्फ, ठीक है। सो जो ये सीबीडीसी है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एम्ब्रिज ऑफ बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS। अब प्रोजेक्ट एम्ब्रिज क्या है? कुछ नहीं, बेसिकली बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, ये बेसिकली चाह रहा है कि उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट एम्ब्रिज, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो ज़्यादातर ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो डिजिटल करेंसी में हो जाएं। डिजिटल करेंसी में हर कंट्री की एक अपनी डिजिटल करेंसी है और उसमें ट्रांजैक्शंस हो जाएं। तो उसी सीरीज़ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है BIS, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट एम्ब्रिज। ऑलराइट, ठीक है। So this was about the third news. Now the next news, and the next news is related to pragmatism with respect to FDI policy of India with respect to China. Basically हुआ क्या कि during the Galwan clashes, Galwan clashes, इंडिया ने चाइना से आने वाला FDI is basically मनी कमिंग फ्रॉम कंट्रीज अब्रॉड। जैसे कि कोई चाइनीज़ पर्सन इंडिया में फैक्ट्री खोलना चाहता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइंग सम फिजिकल असेट्स और ओपनिंग अप अ फैक्ट्री इन दिस कंट्री, उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर जैसे कि यूएसए की कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलना चाहती है, एंड उस फैसिलिटी को खोलने के लिए एप्पल जो है $100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में आ रही है। सो दिस $100 करोड़ इज बेसिकली नथिंग बट एन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब गलवान क्लैशेस हुए थे तो उस टाइम पे चाइनीज़ FDI इन इंडिया में काफ़ी, उसके पहले चाइना से जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। बट गलवान क्लैशेस होने के बाद इंडिया ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में आने से रोका ड्यू टू स्ट्रैटेजिक रीजंस, ठीक है। तो उससे देख लेते थोड़ा सा। तो इंडिया बिकेम प्रोटेक्शनिस्ट मतलब इंडिया ने एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस शो किया, एंड चाइना से आने वाला इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू FDI कमिंग टू इंडिया, इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जिसकी वजह से धीरे धीरे करके चाइना से आने वाला FDI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू हुआ, एंड करेंटली बहुत कम हो गया है, ठीक है। सो द प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस 2020 में क्या हुआ? गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर FDI फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग नेशंस। तो बेसिकली एक प्रेस नोट रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड उसमें लिखा था कि वो कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, विच इंक्लूड्स पाकिस्तान, चाइना, ऑलराइट, तो अगर इन कंट्रीज से कोई भी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ FDI अगर आ रहा है इंडिया में, तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल कराना पड़ेगा, तभी वो पैसा जो है इंडिया में आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग इन इंडियन असेट्स, ठीक है। एंड आफ्टर दिस चेंज इन पॉलिसी FDIs फ्रॉम चाइना डिक्लाइंड ड्रास्टिकली, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ इस नोट का कि चाइनीज शेयर इन इंडियाज FDI क्रैश्ड फ्रॉम 0.43% टू 0.01%। तो आप देख सकते हैं कि टोटल FDI जितनी भी इंडिया में आ रही थी पहले से ही काफ़ी कम थी, ठीक है। एंड आफ्टर गवर्नमेंट रूट इन FDI दिस इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइंड फर्दर टू 0.01%, 0.01%, ऑलराइट, ठीक है। और जो है क्यों किया गया था? क्योंकि स्ट्रैटेजिक रीजंस थे, स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए एंड इंडिया की स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को टेक ओवर ना कर लें, दैट वाज द रीज़न, ठीक है।
तो ये हुआ, बट अभी का जो स्टैंड आ रहा है, अभी का जो बात हो रहा है, एंड दैट इज वेरी मच डिफरेंट टू प्रीवियस स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो द इकोनॉमिक सर्वे सेज that India needs to be pragmatic. India needs to be pragmatic means India needs to be pragmatic with respect to FDIs coming from China. जो सर्वे कह रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, एंड चाइना में जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, ये ग्लोबली जो भी सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं चाइना हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दैट एटमॉस्फेयर, ठीक है. अगर मोबाइल फ़ोन्स हैं तो चिप मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है. तो चाइना हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन, एंड इंडिया इफ इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स, इंडिया नीड्स एफडीआई फ्रॉम चाइना. तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर चाइनीज पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे वांट टू ओपन अप देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, वी मस्ट लेट देम ओपन दीज फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री. इससे हमारे लोगों को जॉब्स मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा. तो वी नीड टू हैव अ वेरी pragmatic approach towards China instead of being protectionist of China. So that was the article all about. इंडिया, इसमें तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में. इंडिया लैक्स अ डोमेस्टिक कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम. एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन. सही बात है, हम लोग कंप्लीट ये सब चीज़ें नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ असेंबल करते हैं. स्मार्टफोन्स की चिप्स बन रही हैं साउथ कोरिया, ताइवान में, ठीक है, चिप्स बन रही हैं चाइना में, और इंडिया में सिर्फ असेंबली हो रही है चीज़ों की. वी जस्ट असेंबल थिंग्स, वी डू नॉट मैन्युफैक्चर थिंग्स, ठीक है. सो इंडिया लैक्स डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट्सेट्रा, ठीक है. तो अगर हमको इन सारी चीज़ों के एक्सपोर्ट्स में और अपने आप को बढ़ाना है, और चाइना इन सब चीज़ों में अच्छा है, तो क्यों ना हम चाइना को और इंडिया में बुलाएं कि वो अपनी यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में खोलें, ताकि इंडिया में माल बने और इंडिया में फिर सामान एक्सपोर्ट हो अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ में, जिससे इंडिया भी ग्रो करे, चाइना भी ग्रो करे. ऑल राइट. So India lacks a domestic component ecosystem with respect to EVs and smartphones, and इसी से related एक वियतनाम मॉडल सजेस्ट किया गया है, and the वियतनाम मॉडल says कि वियतनाम ने चाइनीज़ कैपिटल एंड चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया, जो ऑब्वियसली वहाँ पे चाइनीज़ एफडीआई की वजह से पहुँच पा रही थी, टू बिल्ड लोकल कैपेसिटी एंड देन एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स टू द वेस्ट. तो वियतनाम मॉडल बेसिकली ये कहता है कि वियतनाम गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाली एफडीआई, जो चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट है, जो चाइनीज़ लेड पीपल की लोग थे जो वियतनाम में अपनी फैक्ट्रीज खोलना चाह रहे थे, उनको बहुत ही लिबरल किया एंड बहुत आराम से खोलने दिया. एंड उस तरीके से जो है वियतनाम ने अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, क्योंकि चाइनीज़ फैक्ट्री खुल रही है वियतनाम में, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आएगी, चाइनीज़ मशीन्स आएंगी वियतनाम में, एंड ऐसा करने से वियतनाम की डोमेस्टिक कैपेसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हुई, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हुई. And thereafter, Vietnam, started exporting goods being produced in Vietnam by Chinese firms, and these goods were exported to Western countries. All right. So, इसी पे ही है. So, the survey says to succeed in China +1, India might need to integrate with Chinese supply chains. तो वही बात है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, so India needs to integrate itself with respect with China to ensure its own growth. Let's move on to our next slide. तो देखिए कुछ past 3 months it has been seen that net FDI, net foreign direct investments coming into India has turned negative. तो net FDI मतलब बाहर से आने वाला पैसा जो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और इंडिया से बाहर जाने वाला पैसा, जो बाहर के लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इनफ्लो. और जो इंडियंस बाहर जाके बाहर के एटमॉस्फेयर में, बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे आउटफ्लोज. ठीक है. तो जो नेट एफडीआई है, जो नेट इंडिया में एफडीआई आ रही है, सो दैट इंक्लूड्स ग्रॉस इनफ्लोज माइनस आउटवर्ड एफडीआई विच इज़ आउटफ्लोज. ठीक है ना. तो ये जो है, इसका जो हम अगर पूरा सम करके निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करके, तो नेट एफडीआई इंडिया की क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. तो इंडिया में पैसा आ कम रहा है और इंडिया से पैसा जा ज़्यादा रहा है बाहर विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ऑनशोरिंग.
क्या था पहले जो है जो यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़ थी ये चीप कंट्रीज़ या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री ऑपरेशंस काफ़ी सस्ते रहते थे, ठीक है ना। बट आजकल जो है डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, and European countries and Europe and USA, they want that American capital should stay within their own country, it shouldn't go outside. तो लोकलाइजेशन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, कि जॉब्स अगर क्रिएट करनी है तो हम अपने ही देश में फैक्ट्रीज खोलेंगे और अपने ही लोगों को जॉब्स देंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएस। सो लोकलाइजेशन टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए आउटवर्ड फ्लो फॉर एफडीआई फ्रॉम दीज कंट्रीज हैज़ रिड्यूस्ड, एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई इंडिया इज़ फेसिंग इशूज़, ठीक है। So developed nations bring supply chains home, localization, competing with India for capital, ठीक है। तो पहले ये लोग जहाँ इंडिया जाते थे क्योंकि चीप लेबर था, या चाइना जा रहे थे या बांग्लादेश जा रहे थे चीप लेबर की वजह से, अब दे आर रेस्ट्रिक्टिंग देयर कैपिटल फ्रॉम गोइंग इनटू दीज कंट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। द नेक्स्ट रीजन इज इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स सेकेंड चीज़ ये है बेसिकली कि बहुत सारे लोग इंडिया के कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब कोई विदेशी इन्वेस्टर है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ऑल राइट, बट वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि यूएसए के ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं जो यूएस की ट्रेजरी बिल्स हैं। तो यूएसए के भी के डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छे इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, तो लोग यूएसए से निकल कर कहीं और इन्वेस्ट करना जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। एंड जो लोग पहले से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपना पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट से निकाल रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग दिस मनी टू यूएसए, यूएसए's कैपिटल मार्केट एंड यूएसए's बॉन्ड मार्केट, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन यूएस, फेड हाइक बोलते हैं उसको। एंड द नेक्स्ट रीजन इज रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन अगर मैं बताऊं आपको तो रिपैट्रिएशन ऐसा है जैसे एप्पल एक यूएसए की कंपनी है, एंड एप्पल ने एक फैक्ट्री खोल रखी है इंडिया में, एंड जो है और बहुत सारे स्टोर्स खोल रखे हैं इंडिया में, एंड एप्पल ने जो है एक साल में वर्थ 30 करोड़ आईफोन्स बेचे इंडिया में, ठीक है। अब 30 करोड़ आईफोन्स एप्पल ने बेचे इंडिया में, and Apple wants to send some money from this earned money, that is 30 crores, it wants to send some money back to US, its parent company, all right। तो 30 करोड़ रुपए की जो भी एप्पल ने कमाया उसमें से 10 करोड़ रुपए एप्पल ने वापस यूएसए में भेज दिया, एंड दैट इज रिपैट्रिएशन, एंड दिस इज ऑल्सो वन रीजन वाई एफडीआई इज टर्निंग नेगेटिव in the previous quarter, okay। So these are few reasons why this FDI in India, net FDI in India is turning negative, all right। So I've explained you repatriation. So repatriation is return of capital profits to home country, ठीक है। And there are two types of investments, one is foreign direct investment and one is foreign portfolio investment। Foreign direct investment is long term investment and foreign portfolio investment is short term financial gains, ठीक है। Fine, let's move on to our next article. The next article talks about BRO, Border Road Organization, and ठीक है। So it's a very important this organization, Border Road Organization, ठीक है। तो the Border Road Organization का basic काम क्या है? ये hilly and difficult terrain, difficult जगहों पे ये बेसिकली रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, एंड ऑल दीज थिंग्स करते हैं, ठीक है। रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज वगैरह वगैरह को कंस्ट्रक्ट करना इनका काम है, एंड अलॉन्ग विद दैट बॉर्डर विलेजेस में कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना, बॉर्डर विलेजेस में कनेक्टिविटी, ऑल राइट। कनेक्टिविटी मोटो क्या है बीआरओ का? श्रमेना सर्वम साध्यम, दैट मीन्स एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। तो बीआरओ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, तो वी मस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट बीआरओ, ऑल राइट। तो द मोटो ऑफ बीआरओ इज श्रमेना सर्वम साध्यम, एंड अभी जो है बीआरओ में ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की है कि बीआरओ को उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, एंड जो नॉर्मल एरियाज़ में जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम है वो
जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया जाए अंडर ईपीसी मॉडल, अंडर ईपीसी मॉडल. ईपीसी मॉडल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड, इन्वेस्टमेंट मॉडल, अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल. ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किए हैं. तो लद्दाख में अगर हम बात करें तो दौलत बेग ओल्डी रोड, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दौलत बेग ओल्डी. तो यू नो अगर इन केस ऑफ एन अटैक विद फ्रॉम चाइना और इन केस ऑफ अ वॉर विद चाइना, वी रियली नीड टू मोबिलाइज आवर आर्मी इन दिस सेक्टर, एंड दौलत बेग ओल्डी रोड जो है विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन दैट. ऑलराइट, सो दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है, शिंकुला टनल इन लद्दाख ये बनाया है. अरुणाचल प्रदेश में वन ऑफ द हाईएस्ट जो है ऑल्टीट्यूड पे जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सेला टनल बनाया है बीआरओ ने. ठीक है, तो यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन में आर्मी को बहुत ज़्यादा वेरी फास्ट मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी कैन बी डन. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो है बीआरओ सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर रही है. along with that it is being used with respect to diplomacy as well. जैसे कि हमने जो है प्रोजेक्ट दंतक चलाया था बीआरओ ने टू कंस्ट्रक्ट रोड्स ब्रिजेस इन भूटान. तो प्रोजेक्ट दंतक याद रखिएगा, भूटान से रिलेटेड है. अफगानिस्तान में जारांज देलाराम हाईवे जो हमारी कनेक्टिविटी इंश्योर करता है छाबहार पोर्ट. ठीक है ना, छाबहार पोर्ट इन ईरान. तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक हाईवे था जो बीआरओ ने बनाया. ठीक है, एंड जो बीआरओ ने बनाया पाकिस्तान को बाईपास करते हुए. ऑलराइट, तो हमारी कनेक्टिविटी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया की मतलब जो है ये छाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, एंड फ्रॉम छाबहार पोर्ट ऑफ ईरान अक्रॉस ईरान वी कैन गो डायरेक्टली टू अफगानिस्तान वाया दिस जारांज देलाराम हाईवे. ऑलराइट, वी डू नॉट नीड पाकिस्तान टू हैव एक्सेस टुवर्ड्स Afghanistan. We found an alternate route towards Afghanistan and Central Asia. So ये बनाया बीआरओ ने. फिर फ्रेंडशिप रोड बनाई है म्यांमार में, which increases our connectivity, which increases northeast connectivity to Southeast Asia. So here also BRO has played a very important role with respect to diplomacy strengthening in our neighborhood countries. Along with that disaster response. तो BRO जो है हिली टेरेन्स एंड माउंटेनस रीजन्स में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है, एंड सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स भी यहीं पे होते हैं. सो इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ बाय कंस्ट्रक्टिंग ड्यूरिंग द ऋषिगंगा फ्लड्स. BRO had constructed a 200 feet bridge जो कि उन्होंने 26 दिन के अंदर बनाया था. तो जब ऋषिगंगा फ्लड्स आए थे उस टाइम पे उन्होंने 200 फुट का एक ब्रिज बनाया था अक्रॉस ऋषिगंगा रिवर. ठीक है, एंड काफ़ी सारे जो है उस टाइम पे लोगों की जान बचाई थी, और 26 दिन के अंदर ये ब्रिज इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था. जोजिला पास को जो है इन्होंने फिर से रीओपन कर दिया था विद इन 32 days टू रीस्टोर लद्दाख सप्लाई लाइन. सो दीज आर सम वेरी गुड सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स बाय बीआरओ. अलॉन्ग विद दैट बीआरओ की एक स्कीम भी है जो मैं बता दूं आपको. एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इट बेसिकली इट इज़ अ बीआरओ लेड प्रोजेक्ट जिसके अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन किया जाता है इन बॉर्डर विलेजेस. ठीक है, और बॉर्डर विलेजेस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रहेगा, रोड्स अच्छी रहेंगी, तो बॉर्डर विलेजेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी एंड आर्मी मोबिलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को याद रखिएगा दैट इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड्स इन villages, border villages. All right, and this program is led by BRO. Fine, so let's move on to our next article which is related to Startup India. Startup India at the rate 10 years. So whenever UPSC and APSC has a habit of asking questions on schemes which have recently completed 5 years or 10 years, and Startup India is a very important scheme and it has recently completed 10 years. All right. So there are a few points with respect to Startup India. We had previously covered this news in our previous analysis as well. So there are a few points, so we will just brush up them. India is the third largest startup ecosystem
ग्लोबली, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में। 2025 में ही अकेले 44,000 न्यू स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन 2025 itself. So previous year also many these startups have been registered. Acha, along with that, there has been a trend being seen that startups in India are, you know, maturing and moving to in the right direction, because जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी एंड उस टाइम पे जो स्टार्टअप कल्चर था वो कैश बर्न मॉडल को ज़्यादा फॉलो करता था। एंड कैश बर्न मॉडल इज़ लाइक अगर कोई स्टार्टअप जो है वो अगर 100 रुपये का सामान बेचना चाह रहा है तो उस 100 रुपये के सामान को बेचने के लिए वो 200 रुपये और एडिशनल खर्च कर रहा था, एडवर्टीजमेंट करके या फिर यू नो कंसेशंस देके। एंड द आइडिया वाज कि फर्स्ट कैच द कंज्यूमर बेस, अट्रैक्ट द कंज्यूमर बेस एंड थिंक ऑफ प्रॉफिट लेटर ऑन, ठीक है। सो दैट वाज सेड टू बी कैश बर्न मॉडल, बट इट हैज बीन सीन दैट स्टार्टअप्स इन इंडिया आर मूविंग टुवर्ड्स, यू नो, वैल्यू क्रिएशन। दे बिलीविंग ऑन, यू नो, प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड यू नो अट्रैक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस, ठीक है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्कीम. DPIIT, we must know what a startup actually is. So DPIIT defines startup as an any business जो कि 10 साल से छोटा हो, 10 साल को क्रॉस ना किया हो. तो हर वो बिजनेस जो भी रिसेंटली खोला गया है एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स या उससे छोटा का उसका टाइम पीरियड रहा है एंड उसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ के आसपास है, ऐसे बिजनेसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप्स बोलेंगे. अच्छा, अलॉन्ग विद दैट जब भी हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे दो टर्म्स का और यूज़ होता है. वन ऑफ देम इज़ यूनिकॉर्न, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं या वो कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास होगा, विच अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 8500 crores. ठीक है. डेकाकॉर्न इज समथिंग हु हैज़ अ वैल्यूएशन ऑफ $10 billion. ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल अबाउट स्टार्टअप स्कीम. Let's move on to our next scheme. Next news is related to dairy sector, and the government has come up with a national digital livestock mission. ठीक है, so it has been in the news again. So this mission basically involves livestock such as cows and buffaloes. All right. ठीक है, and digital means technology integration. Technology integration. तो बेसिकली जो है टेक्नोलॉजी टेक सपोर्ट लिया जा रहा है इस मिशन में, जिससे कि जो हमारी जो लाइफ स्टॉक्स है उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके. एंड इसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि टेक स्टैक बोलेंगे जिसको. इसमें पहला कंपोनेंट्स है पशु आधार. पशु आधार, पशु आधार इज़ नथिंग बट जैसे सिटीजन्स ऑफ इंडिया का एक आधार कार्ड होता है, ठीक है, एंड उस आधार कार्ड में डिटेल्स होती हैं, उनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स होती हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स होती हैं. तो सिमिलरली जो है लाइफ स्टॉक्स की भी टैगिंग किया जाएगा, एक उनको भी एक यूनिक नंबर दिया जाएगा एंड उस यूनिक नंबर से लिंक किया जाएगा कि जो लाइफ स्टॉक है, जो मवेशी है, जो भी जो एनिमल है, क्या इसकी वैक्सीनेशन हुआ है, ठीक है, ब्रीड क्या है इसकी, क्या इसकी ब्रीडिंग कभी पहले हुई है या नहीं हुई है. सो ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दैट एनिमल वुड बी केप्ट इन दैट दिस आधार ऑफ पशु. ठीक है, तो 12 डिजिट यूनिक आईडी फॉर ट्रेसिएबिलिटी. ट्रेसिएबिलिटी इससे आसान हो पाएगी. ठीक है, तो ये हम करेंगे. इसमें एक कंपोनेंट है. दूसरा कंपोनेंट है ऑटो मिल्क कलेक्शन सिस्टम. ऑटो मिल्क कलेक्शन सिस्टम, ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो मैनुअल हैंडलिंग होता है इंडिया में, बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्टॉक, दैट मैनुअल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इसी में ही टेक सपोर्ट, मशीन्स, सेंसर्स को लाने की बात की जा रही है कि जो मिल्क कलेक्शन होगा, जो मिल्क कलेक्शन होगा उसमें जो है मशीन के ज़रिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक सपोर्ट लिया जाए. उसमें जो मिल्क निकाला गया है लाइफ स्टॉक से, उस मिल्क में फ़ैट कंटेंट कितना है, उसके लिए प्रॉपर सेंसर्स हो सकें जो ऑटोमेटिकली हमें बता दें कि मिल्क क्वालिटी कैसा है, उसमें फ़ैट कंटेंट कैसा है, उसकी टेस्टिंग कर दें इमीडिएटली. तो इसमें हम टेक सपोर्ट लेके आए जिससे कि क्या हो, मैनुअल हैंडलिंग ऑफ मिल्क ना हो. ठीक है, मिल्क की में जो है अडल्टरेशन ना हो सके. सो इसलिए ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम की बात की जा रही है इसमें नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन में. फिर इसमें जो है GIS ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है. एंड GIS ऑप्टिमाइजेशन इज जस्ट नथिंग बट, आप ऐसा समझ लीजिए, गूगल मैप्स फॉर मिल्क वैन्स, फॉर मिल्क वैन्स, गूगल मैप फॉर मिल्क वैन्स. ऑल राइट.
सो GIS ऑप्टिमाइजेशन, तो बेसिकली क्या होता है, मिल्क इज़ अ वेरी हाईली पेरिशेबल कमोडिटी एंड जो है तो इसको जो है इसकी कनेक्टिविटी एंड इसकी लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी पे फोकस करना इज़ लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब क्या होगा, स्पेशलाइज्ड वैन्स रहेंगी जो मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगी एंड डेडिकेटेड उसको रूट्स दिखाए जाएंगे वाया गूगल मैप्स, ठीक है। तो क्या होगा इससे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मिल्क फ्रॉम वन एरिया टू अनदर would be done at a more faster pace, logistical efficiency would be achieved, reduced cost क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कंजेशन नहीं होगा। अब गूगल मैप्स वो रास्ता दिखाएगा मिल्क वैन्स को जहाँ पे कंजेशन नहीं है, रोड्स अच्छा है, ठीक है। सो पहले के मुकाबले जो अगर GIS ऑप्टिमाइजेशन करेंगे हम तो इससे दूध की जो है डिलीवरी और तेज़ी से हो सकेगी एंड एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। तो इस नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन से फ़ायदा क्या होगा, ट्रेसिएबिलिटी हो पाएगा कि भाई अगर कोई जो है किसी लाइव स्टॉक में अगर कोई बीमारी है तो आप उसको उसके यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड, डिजिटल आधार नंबर से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेसिएबिलिटी में हेल्प मिलेगा इस टैगिंग से, पशु आधार से। फार्मर्स को बेहतर इनकम मिल पाएगी, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग होगी मिल्क की, कितना कंटेंट है मिल्क का, कितना उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, एंड इससे क्या होगा, फार्मर्स को बेहतर इनकम मिल पाएगी। मैनुअल हैंडलिंग करने की वजह से क्या होता है, कई बार इसमें जो है अडल्टरेशन होता है एंड फार्मर्स डू नॉट गेट द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ इसमें एफिशिएंसी आएगी विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी ड्यू टू GIS ऑप्टिमाइजेशन। So that was all for today. Thank you very much.